Hi, Koina. How are you? Very well, thank you. How are you? I'm good. Yeah, I'm good. So, how is the new Okay. normal being like for you? So, what new you have learned from the quarantine? I must ask you now. Little bit of cooking, हाँ. house cleaning. अच्छा, हाउस क्लीनिंग uh, भी क्या बात है? yeah, matlab setting up my wardrobe and stuff. Like I found out, I found things that I हाँ. lost years back. Like हाँ. I bought and, maybe, kept it there and then forgot about it. So Okay, okay. it was fun to find out, to हाँ. find old stuff with, old price tags हाँ. that I haven't Actually. used yet. Yeah. So वैसे भी for girls there is no other gift which is better than this finding out things है ना जो खो जाती है Uh, कहीं ना हमारी Old शॉपिंग purse, करते old bags, हाँ. old purse, old bags, हाँ. old denims, pockets, and and small little cupboards, हाँ. finding old things. हम्म. और क्या क्या न्यू एक्सप्लोर किया कोयना ने खुद में? This time it's teaching us so much. हम्म. Most importantly, discipline. हम्म. Creator is punishing us for being so indisciplined. So something, एक्चुअली. that's what I like about this time. That हम्म. people are becoming more careful and sensitive, हम्म. sensible and disciplined, which is a good thing. हम्म. The bad thing is, yeah, work, money, travel, हम्म. all that is on halt right now. तो On इज देयर pause. And that's okay. That's okay. It's not permanent. Nothing is forever. So, एग्जैक्टली. so one has to, we must be patient and see what future has in store for us. एक्चुअली. So is there anything that Koina is going to miss about the lockdown when all this gets over? The me time. Oh So yes, much of me definitely. time. So much of me time. Spending so much time all alone, hmm. reading, studying, checking, things, the net, reading books, Hmm. cleaning my house, tried to cook. But the Hmm. worst part is, cooking for myself. If you Hmm. cook for a family, cook for friends, Hmm. then it's a different kind of joy, different kind of fun. But you cook just to eat, just Exactly. for yourself, it's quite boring. Hmm. So I try to keep it as simple, as basic as possible. Hmm. But the whole phase of Hmm. worrying about people around you, worrying about neighbors, worrying about your staff, Exactly. worrying about almost everything. You know, Hmm. we were just struggling to survive this period. That's Hmm. also a very very good lesson. Like I said, that people are more sensitive, more human. I Exactly. see. I'm not talking about social media. I'm talking about onto hmm. social media. Media is so evil, pure हाँ. evil. Actually, and we have seen Bollywood celebrities like big celebrities leaving social media and taking a backseat from social media, I must say, such that they won't have to give answers for anything which has been asked to them, or like if they are being trolled See, sometimes, है ना? ये no, सकते हैं. see, Hmm. trolling is bad, whether you're Bollywood, you're politician, or whoever. Hmm. No one should cross that line. That daira. No one should Hmm. cross that line. They throw Definitely. all their frustrations on social media, Hmm. and especially on public figures. कि चलो Hmm. आज इसको धोया है. Yeah. That kind of satisfaction they get out of it, Hmm. which Hmm. is not right. I see Hmm. poor conduct, cheap language. Hmm. That pisses me off. Okay. But people leaving social media, taking a break from social media isn't a bad thing because Hmm. mental health is very important. Yes. Hmm. Mental health is the most important thing, and if it's disturbing, if it's irritating, annoying, then it's better to stay away from it, for Hmm. some time. I Hmm. also do that. At times I'm super active, and at times not Very visible active. on social media. Hmm. Okay. So a lot of things are cooking into Bollywood also if we talk about these days. Especially when you talk about mental health ना, actors का कहीं ना कहीं like कहा जाता है ऐसा कि वो लोग का मेंटल हेल्थ होता है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहता है अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के चलते. अभी कुछ वक्त पहले सुशांत का जो केस हुआ उससे बहुत सारी बहस जो है बॉलीवुड में हो रही है. आई विल लाइक से दैट अ नेगेटिविटी हैज कम अप है ना दैट इज कुकिंग इन Mhm. बॉलीवुड. कंगना ने सपोर्ट किया काफी See, it's सुशांत there को. in every industry.
You can't Exactly. avoid it. It's there in every industry. You can't avoid. The Hmm. thing is, public figures. Hmm. Let me decode it first. Hmm. Okay, for Hmm. a public figure, whether you're an actor, technician, athlete, टीवी हो या बॉलीवुड हो, कोई भी हो, Hmm. जिस दिन आपने डिसाइड किया था कि आपको ये इंडस्ट्री ज्वाइन करना है, Hmm. उस दिन आपको पता था कि गुड बैड अगली ऑल थ्री यू विल हैव टू फेस. Obviously. Hmm. All three you'll have to face, all three you'll have to handle, you'll have to fight it and then find the solution. ठीक है? Hmm. Hmm. You can't just expect people to praise you and appreciate you and not question you. I've Hmm. seen a lot of celebrities have problems, a lot of politicians have problems. They run away from Hmm. situations the moment they are being questioned. Actually. Hmm. Okay, so that's a very normal, that's way of life. That's Hmm. Hmm. the most normal thing, that if you are asking questions Hmm. or you are, you have opinions, Hmm. others can also have opinions. Hmm. You are, allowed to ask questions. It's your birthright. Others also have the right to ask questions. Hmm. So don't run away, don't call them criminals, Hmm. don't call them bad or mean, and don't try to shoo them. Don't try to shut them up. Hmm. It is their birthright. If they want, and you don't like certain people, it's your choice. You don't talk to them. Hmm. You don't communicate with them. But you can't call them wrong. And I'm not talking about trolls. I'm talking about debates. I'm talking about questions. I'm talking about, uh, basic stuff, communication that a politician or, let's say, stars face on daily basis, right? Hmm. Hmm. Communication. Your followers, you expect your followers to go buy tickets, Hmm. run your house, run your show. Hmm. You live a luxurious life. Obviously. And the same followers, if they expect you to open your mouth and, be vocal about certain things Hmm. to help them, to be their voice, Hmm. to lead the, race or, whatever. Hmm. That time you go and hide because you don't want to divide them, or you don't want to talk about political issues, you don't want to talk about the nation, you don't want to talk about our soldiers, Hmm. but you make movies on soldiers and take trophies and win trophies. Of course. But when it comes to India Pakistan issues, or if our soldiers are dying somewhere, Kashmir issues, most of these actors and people shy away from giving statements because they don't want to lose fans, because they don't want to divide people, they don't want to lose fans. उनको मतलब इंडिया से भी फैंस चाहिए, उनको दुश्मन कंट्री से भी फैंस चाहिए, ऐसा होता नहीं. Exactly. Hmm. Life isn't that easy. Hmm. So celebrities also should understand that people that are paying for your bills, Hmm. people that are paying, to run your house, Hmm. people are buying tickets to run your house, they're paying your bills, they take care of your lifestyle and they take care of your identity. Because of them, we have identities today because of them. Hmm. We will have to face acceptance, we'll face rejection also. Hmm. And we'll have to think, why are we being rejected? If you are being rejected for being honest, for speaking the truth, then it's okay. Hmm. If you are being rejected for stupid reasons, then it's not okay. Okay? But here one thing I would like to ask you, Koina, that what about your experience of working into Bollywood? Did you yourself have faced criticism or like rejections at times? Like You no, do? at times I am, I can't take names. At times I have, a lot of seniors, a lot of people try to stop me. But why to voice an opinion about this issue, that issue? जनता को, क्राउड को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है. तुम्हें सब चाहिए, मुझे नहीं चाहिए. अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ नहीं है, मुझे पाकिस्तान फैंस नहीं होगा तो चलेगा. यू कांट आस्क फॉर, यू कांट हैव एवरीथिंग इन लाइफ. ठीक है ना? इतना लग्जरी किसी के पास नहीं है कि तुम इंडियन हो, इंडियंस तुम्हारा घर चला रहे हैं, उनकी वजह से यू हैव एन आइडेंटिटी टुडे. ऑफ कोर्स. और इंडिया के दुश्मन है, हमारे सोल्जर्स जाके बॉर्डर पे मरते हैं, एंड देन यू फीयर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान. आपको उनको उनके बारे में कमेंट देने में, या तो आपको सोल्जर्स के बारे में बात करने में आपको डर लगता है, आप हेजिटेट करते हो. वाई? क्योंकि आपको पाकिस्तानी फैंस या दूसरे कंट्री से फैंस खोना नहीं है. दैट्स हिपोक्रेसी. So lot of times, a lot of technicians, lot of seniors try to make me understand कि कोई ना
you don't have an opinion, about all this. Don't, talk about politics. Don't talk about, nation's issues. इससे जनता डिवाइड हो जाता है. But that's pretty selfish. I find, a lot of selfishness, self-centeredness there. You imagine when our soldiers are dying, मतलब border पे जब मतलब मर जाते उनके फैमिली भूखे बैठे रहते हैं, है ना? उनको कैसा लगेगा when they see our interviews, when we are talking about Aman and Dosti and all that with Pakistan, उनको कैसा लगता होगा? How betrayed, betrayed they may feel, ना? Definitely. हाँ, तो वो सैलरी के लिए काम नहीं करते, वो दिल से काम करते हैं. और अगर सैलरी के लिए लॉन्ग बैक बरखादार हैड गिवन अ स्टेटमेंट कि इनको तो सैलरी मिलता है, अब जाओ सैलरी लेकर बॉर्डर पे मर जाओ. हाउ मेनी पीपल हैव गट्स टू डू दैट? Nobody, I believe. Very less people. हाँ, how many people will have guts to do that? कि who have that सैलरी के लिए guts to serve the nation, obviously. Exactly, that's what I'm saying. That every story is different. My story is different. XYZ stories are different. The priorities are different. है ना? I'm an honest person, truth seeker, and I enjoy it. तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वहां से मुझे 50 लोग कम हो गए, मुझे फर्क नहीं पड़ता. Yeah, you're being honest. That's the best part. Yeah, so I've been told by many senior actors that don't have an opinion about all this. इंडस्ट्री तुम्हें पसंद नहीं करेंगे, तुम्हारे साथ काम करने से हेजिटेट करेंगे, क्योंकि उनको ऑडियंस डिवाइड करना नहीं है. तो मुझे उसमें लॉजिक नहीं मिलता, मुझे उसमें बहुत ही कवर्डनेस दिखता है. बट बॉलीवुड के बारे में भी बहुत सारी बातें होती हैं कि फेवरेटिज्म बहुत है, गुटबाजी बहुत है. जब आप बिग बॉस सीजन 13 से एविक्ट हुई थी तो आपने भी ये कहा था कि सलमान ने बायस होके ऐसा किया. मतलब इज दैट देयर इन बॉलीवुड? जो इतना नेगेटिविटी है ये बायसनेस को हर इंडस्ट्री में है, हर इंडस्ट्री में है. बायसनेस, नेपोटिज्म. नेपोटिज्म इज स्टिल ओके. मतलब आपके खानदान में अगर 4 लोग हैं और आपके पास प्रोडक्शन हाउस है खुद, तो आप अपने बच्चों को लॉन्च नहीं करोगे, काम नहीं करोगे, आप तो करोगे. मुझे उस चीज से प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम ये है कि इंडस्ट्री का जो मेंटालिटी है ना, दैट let's say a star's daughter will get good films despite 15 flops. 15 फ्लॉप देने के बाद भी उनको फिल्म्स मिलता है. ठीक है, और उनको बड़े प्रोडक्शन हो या बड़े प्रोजेक्ट्स में एक्सेस मिल जाता है बहुत आसानी से. कि माँ बाप ने कॉल कर दिया और आसानी से एक्सेस मिल गया. जो आउटसाइडर्स के लिए नहीं होता, उनके लिए स्ट्रगल ज्यादा है. वाइस वर्सा, स्टार किड्स को भी मतलब टेंशन, मतलब उनको सामना करना पड़ता है, लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म. उनको कंपेयर किया जाता है कि यू आर नॉट लाइक योर फादर. ना तुम्हारे फादर के लाइक मतलब 10% भी तुम नहीं हो. जो हमारे साथ नहीं होता उनके साथ होता है. प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एवरीथिंग. प्रोज एंड कॉन्स है हर चीज में. तो नेपोटिज्म इतना बड़ा चीज नहीं है जिसमें ग्रुपिज्म आ जाता है कि हम जो चाहते हैं वही करेंगे, हमारे लोग करेंगे, इसे ऊपर लेके जाओ, इसे नीचे लेकर जाओ. You get my point? That's there in every industry. That's there in every industry. वो पावर प्ले का जो गेम है ना, it's there in every industry. Be it मूवी, फैशन हो या टेलीविजन हो, स्पोर्ट्स हो, हर इंडस्ट्री में है. And we have seen you off late with supporting Kangana with respect to the fight against nepotism. So it's not really about supporting. No, it's not about supporting her. It's about supporting the issue. the current issue. ठीक है, सब्जेक्ट जो है वो सही डायरेक्शन पे, सही पॉइंट पे बात करती है. तो मैं भी करती हूँ कि अब करंट इशू जो है उस इशू से हटना नहीं चाहिए. दूसरे इशूज को लाने की जरूरत नहीं. इशू यही है कि हमारे इंडस्ट्री में ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, एंड मोर पीपल शुड कम आउट एंड टॉक अबाउट इट, so that these kind of people, this गुंडागिरी and manipulation, ये जो करते हैं वो discomfort में रहे. That's why I said that they don't like being questioned, they don't like being asked. You ask the right question, you hit the right point, then immediately you see discomfort in their body language. Immediately वो मतलब घबरा जाते हैं और चुप कराने की कोशिश करते हैं कि नहीं आगे बढ़ते, नहीं आगे चलते हैं. सोशल मीडिया छोड़ देते हैं या तो अवॉइड कर लेते हैं.
इसका मतलब ये नहीं कि पब्लिक पूछना बंद करेंगे. एंड वन मोर थिंग, यू आर जर्नलिस्ट. जर्नलिस्ट के हाथ में बहुत सारा पावर है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हाँ, मीडिया इज वन मीडियम, द मोस्ट पावरफुल मीडियम दैट एजुकेट्स पीपल. ट्रू दैट. सही न्यूज को आगे बढ़ाना, सही लोगों को एम्पावरमेंट देना. और जहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे बॉसीनेस है, यहाँ पे डिक्टेटरशिप है, यहाँ पे गुंडागिरी है, उनको अवॉइड कर देना, उनको वो प्लेटफॉर्म ना देना भी आप लोगों के हाथ में है, जो बहुत सारे मीडिया करते नहीं है. बट वन थिंग आई वुड लाइक टू आस्क हियर कोयना कि आई हैव नॉट आस्क्ड इट टू एनीवन अभी तक. मतलब ये जो नेपोटिज्म का मामला है जो इतना गरमाया हुआ है बॉलीवुड में, या पहले मी टू केसेस जब सामने आए थे, लोग इनफैक्ट द लेडीज हैव कम फॉरवर्ड और बहुत सारे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के नाम उसमें शामिल हुए, एक्टर्स के नाम शामिल हुए, एंड ये मोमेंट्स की तरह सामने आते हैं, है ना, अवेयरनेस हो जाती है लोगों को कि ऐसा हो रहा है. बट देन कहीं ना कहीं थोड़े टाइम के बाद सब चीजें सप्रेस हो जाती हैं, दब जाती हैं, कहीं खो जाती हैं. तो कहीं जैसे आपने कहा कि हर किसी को आगे आना चाहिए, उस मुद्दे पे बात करनी चाहिए, है ना. व्हाई पीपल आर रनिंग, आर टेकिंग देयर बैक सीट्स और लाइक नॉट कमेंटिंग ऑन द सेम. तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि कुछ वक्त के बाद ये भी थम जाएगा, फिर एक नया मुद्दा आएगा जिस पे बातचीत होगी? बिल्कुल बिल्कुल. दीज आर फेजेस. हाँ, दीज आर फेजेस. ऐसा ही होता है. वर्ड सेरेमनी का फेज आता है तो वहाँ पे सर्कस देखने को मिलता है. सब कुछ खरीदा हुआ है या तो मैनिपुलेटेड है, सबको पता है. उसके बाद एक फेज आता है हिट के, उसके पास एक फेज आता है फ्लॉप के, एक फेज आता है नथिंगनेस, लाइक नाउ. कोई जितना भी काम करो, कि जितना भी स्टारडम हो, पावर हो, कुछ भी हो, फेमस हो, कुछ भी हो, हाँ, जब नेचर चाहता है तो वो घर पे बैठा सकता है. ठीक है ना. तो फेजेस तो आएंगे जाएंगे, गुड बैड अगली. लाइक आई सेड, व्हेन यू आर अ सेलेब यू हैव टू फेस ऑल थ्री विथ इक्वल ग्रेस. ठीक है ना. ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ बेनिफिट्स उठाना है, पब्लिक को यूज करके उनका बेनिफिट लेना है. एंड जब पब्लिक आपसे उम्मीद रखते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनके लिए आवाज बने, आप उन्हें लीड करें, उस वक्त आप डिप्लोमेटिक होकर घर पे छुप जाए कि मुझे इस इशू में बात नहीं करना है, मुझे आंसर नहीं देना है, वो कवर्डाइज एक्ट है. वो बहुत ही कवर्डाइज एक्ट है. पब्लिक को अब थोड़ा बहुत ज्यादा अवेयर होना चाहिए. पब्लिक को सोच समझकर एम्पावर करना चाहिए और आइडियल्स चूज करना चाहिए. सिंपल. एग्जैक्टली. क्योंकि पब्लिक ने ये पावर दिया है हमें, है ना. अगर पब्लिक ने ये पावर दिया है, पब्लिक ले भी सकते हैं. तो उनके थोड़ा समझदारी से ना, सोच समझकर लोगों को प्रोजेक्ट्स को एम्पावरमेंट देना चाहिए. जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं सुशांत केस में, ऑल हिज फैंस, ऑल द जनरल पब्लिक, लाइक इतना ज्यादा ये मुद्दा अभी गरमाया हुआ है, मैं कहूंगी कि आफ्टर दैट सीबीआई जांच की मांग होना, जिसमें आपने भी कहा कहीं ना कहीं कि उनकी फैमिली चुप है, तो क्यों है, उसके पीछे का रीजन क्या है. आई वुड लाइक टू आस्क वन थिंग हियर कोयना, कि डू यू थिंक एक्चुअली कि बॉलीवुड में कहीं किसी लाइक रूल चलता है किसी का, या फिर कोई लोग हैं जो लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं? ढेर सारे हैं, लाइक आई सेड, ढेर सारे हैं. और उनका सबसे बड़ा वीकनेस यही है कि उनका सबसे बड़ा वीकनेस है डर. उनसे लोग सवाल ना पूछे. उन्हें सवाल से इतना डर क्यों है? आपको सिर्फ गुड और अप्रिसिएशन और तारीफ पसंद है, आपको क्रिटिसिज्म पसंद नहीं है, आपको सवाल पसंद नहीं है. एक तरफा गेम नहीं हो सकता. व्हेन यू आर अ स्टार, व्हेन यू आर अ पब्लिक फिगर, यू हैव टू फेस एवरीथिंग. ये जानकर ही हम इस इंडस्ट्री में आए थे. ठीक है ना. आपको सिर्फ अप्रिसिएशन चाहिए, तारीफ चाहिए, फैन फॉलोइंग चाहिए. और आप जब मौका मिलता है, या तो पब्लिक चाहते हैं कि आप उनके लिए वॉइस बने, उस वक्त स्टारडम के नाम से, या तो कोई भी चीज के नाम से, नेम फेम या रिस्पेक्ट, कुछ भी चीज के नाम से, फालतू चीजों के नाम से आप चुप सकते हैं. क्वेश्चंस आप अवॉइड करते हैं, सिचुएशंस आप अवॉइड करते हैं. How much do you agree with like Mukesh Bhatt comparing Sushant with Parveen Babi and other actors who died due to suicide? ये comparison क्या पता होना नहीं चाहिए? मुझे ऑनेस्टली मेरे पास आंसर नहीं है कि मुकेश भट्ट के पास इतना सारा इंफॉर्मेशन होता कैसे है. आई डोंट नो. आई एम क्यूरियस टू नो कि इतना सारा इंफॉर्मेशन उनके पास होता कैसे है. वो हर गलत केस में कहीं ना कहीं शामिल होते हैं, गलत स्टेटमेंट देते हैं. उन्हें पूछा क्यों नहीं जाता कि इतना सारा इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास आता कैसे? और अगर इतना इन्फॉर्मेशन है तो फिर वो उसके लिए कुछ करते क्यों नहीं है? एग्जैक्टली. I asked that. Actually.
एंड लाइक करण जौहर के लिए भी कंगना लाइक फ्रंटलाइन वॉरियर की तरह वो सामने आई हैं, उनके लिए वो इतना कुछ कह रही हैं नेपोटिज्म के बारे में एंड ऑल, बट ही हैज आल्सो नॉट कम फॉरवर्ड टू आंसर ऑल दिस. हाउ मच डू यू एग्री कि ये कितना That's सही what है I'm मतलब? saying. That's what I'm saying. I'm हाँ. addressing the right, issue. वो होता है कायरता, कवर्डाइज ऐप, कि तुम्हें सिर्फ अप्रिसिएशन पसंद है, थैंक यू बोलने के लिए तुम सामने आ जाते हो, छुप रहे हो ट्रॉफी मिलता है तो तुम खड़े हो जाते हो. हाँ, थैंक यू बोलने के लिए तुम पे सवाल उठाए लोग, तुमसे सवाल पूछे, नहीं मुझसे सवाल मत पूछना, क्वेश्चंस मत पूछना. क्यों? इतना प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए. यू विल ऑल्सो हैव टू फेस क्वेश्चंस, है ना, वो गुड बैड अगली हो उसका सामना करना पड़ेगा. यू विल ऑल्सो बी क्वेश्चन. उसमें क्वेश्चन से इतना डर क्यों होता है? एंड यू हैव सेड राइट वर्ड्स की पब्लिक को पूरा अधिकार है जब वो आपको स्टार बनाती है तो भी लाइक तब आप उसकी अप्रिसिएशन को अप्रिशिएट करते हो, लेकिन जब वो आपसे सवाल पूछती है तो फिर आप भागते क्यों? दैट्स एग्जैक्टली. वेरी वंडरफुल थिंग सेड बाय यू. पब्लिक के हाथ में वो जजमेंट पावर भी है. वो जजमेंट पावर भी उनको जज करना चाहिए, सोच समझ कर वो लोगों को आइडल बनाए और आइडलाइज कर. बिल्कुल. Thank you so much, Koina, for putting your thoughts with us, sharing your thoughts with us. It was wonderful, like having conversation with you.